Hello and welcome everyone. Welcome to an academy which is India's largest learning platform. I welcome you all on this platform. So my name is Alok Singh and I have done my MTech in machine design from NIT Kurukshetra and I have mentored more than 25,000 students in online as well as offline platforms. I've cleared UPPSC Assistant Engineer examination and I have qualified GATE 4 times with top ranks and I have a total teaching experience of more than 5 years. So this was a brief introduction about myself. So let's start today's session. So before we proceed to today's session, so I would like you to download this app, that is Unacademy's learning app. So अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, so go and download this app. This app will help you a lot because यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? Here you can watch the special classes. And these special classes are the free courses. Okay, so these special classes will be free courses and any one of you can join these courses, है ना? इसके लिए आपको if you don't have any subscriptions then also you can watch these special classes. Now let's move ahead and we'll see now what else you will get. You will get to learn with the top educators of country on this platform. Now, after downloading the app, you have to select your goal as GATE and ESE, है ना? After downloading the app, आपको करना क्या है? आपको अपना goal select करना है GATE and ESE, and there you can see that number of courses are running. Sorry. So there are number of courses are running. Many courses आप देखोगे कि बहुत से courses complete हो चुके हैं, बहुत से courses upcoming है. So as per your requirement, you can join those courses, है ना? सो अब अगर आपको कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो पहले से कंप्लीट हो चुका है, सो आप जाके रिकॉर्डेड लेक्चर दे सकते हो एंड देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन वॉच ए वीडियो. ओके, सो चलिए अब बात करते हैं अबाउट दिस पेड कोर्सेज. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर्सेज. वन इज योर प्लस कोर्स, सेकंड वन इज योर आइकॉनिक कोर्स. So under the plus courses, there are number of options available. 1 month option is there, 3 month option is there, 6 month, 12, 18 and 24 months options are there. And these are the pricing details. So यहाँ पर आपको कोड पुट करना होता है, have a referral code. सो हैव ए रेफरल कोड. यहां पर आपको कोड पुट करना है आलोक एस टू गेट द 10% डिस्काउंट. सो यू हैव टू यूज दिस कोड टू गेट द 10% डिस्काउंट एंड देन यू विल गेट दी सब्सक्रिप्शन अंडर दीज प्राइसिंग फॉर 1 month and 3 months. सी क्योंकि अब गेट की एग्जाम की बात करें सो अराउंड 1.5 month इज देयर. इफ यू वांट यू कैन गो फॉर 1 month सब्सक्रिप्शन प्लान. ओके, सो बिकॉज हियर यू विल गेट टेस्ट सीरीज एंड ऑल. And if you want you can go for this 3 month subscription plan also. And those students who are aiming for GATE 2022 जो अभी थर्ड ईयर में उनके पास एक और टाइम है. Okay, so before their college, so they have one more time in the final year, so they can appear, so they can go for this 12 month subscription plan or this 18 month subscription plan. Okay, जिनका टारगेट गेट एंड एससी टू 22 है, so they can go for these two. एंड दोज हु आर इन कॉलेज जो अभी मतलब सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में एंटर करेंगे, सो फॉर देम दिस इज रिकमेंडेड. दे कैन गो फॉर दिस 2 year सब्सक्रिप्शन प्लान एंड यू कैन सी द पर मंथ pricing is little like very less if you go for this 24 month subscription plan. ओके, सो नाउ कमिंग टू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. फटाफट आइकॉनिक की बात कर लेते हैं. सो अंडर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देयर आर टू ऑप्शंस. देयर इज 12 month एंड 24 month ऑप्शंस आर देयर एंड दीज आर द प्राइसिंग डिटेल. और यहां पर भी आपको क्या होगा, हैव ए रेफरल कोड का ऑप्शन होगा. सो यू हैव टू पुट दिस कोड टू गेट द 10% डिस्काउंट एंड then this 1 year plan will be in 45,000 around, and this 2 year subscription plan, this will be in 66,600. Okay, so yes, pricing a little bit high for the iconic subscription, but there may be some extra benefits. Okay, so let's see that kya extra benefit hai yahan par. So under plus subscription you will get India's best educator. Interactive live sessions will be there. Structured courses and PDF will be provided. That means the course will be designed. Okay, so this course will be structured as per the requirement of the examination, and after the like lectures you can download the PDF of the notes and you can appear in the live test and quizzes. This is the very like one of the best feature that you can appear in these tests and quizzes because आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, so to evaluate yourself this is very important parameter. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो. ये सारी की सारी चीजें आपको आइकॉनिक में भी मिलेंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट वन पर्सनल कोच,
पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. लाइक देयर विल बी समवन हु इज गोइंग टू मॉनिटर यू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सो यस वी नो दैट जो हमारा जो सेशन का जो सीरीज चल रही है, सो दिस सीरीज इज ऑन टॉप 50 क्वेश्चन. सो दिस इज द सेकंड lecture of the top 50 questions, and in the first session we have covered around almost 5 questions, and in this lecture also we are going to cover 5 very good questions. Okay, so let's start with the first question. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. What is given in this question? So yes, this question will start from question number 6 because 5 we have completed in the first lecture. चलिए देखते हैं what is given in the question. An object is made of elastic material having modulus of elasticity E equals having modulus of elasticity E and Poisson's ratio mu is restricted from moving in x direction by two rigid wall as shown in the figure. It is free to move in other two direction. Okay, a stress sigma is applied in y direction as shown. Find the relationship between the applied compressive stress sigma and the compressive strain epsilon in the y direction. Okay, very good. So what is given in this question? On this member we have applied stress on the y direction, that is the compressive stress, and the restriction in in x direction. Okay, so this x direction expansion is restricted. Okay, so it is not allowed to move in the x direction. It can move in the z direction. Okay, and in the y direction we are applying the stress. So we have to find out a relationship between this stress and this strain. Okay, so the compressive stress sigma and the compressive strain epsilon in the y direction. So let's start this question. चलिए इसको फटाफट समझते हैं कैसे करना है इसको. So for this member चलिए तो y डायरेक्शन से लोड लगा दीजिए. तो हमने y डायरेक्शन से यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा दिया सिग्मा, y डायरेक्शन से कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा दिया सिग्मा, एंड इट इज नॉट अलाउड टू मूव इन द x डायरेक्शन. ओके, इट इज नॉट अलाउड टू मूव इन द x डायरेक्शन. सो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी गुड, है ना. ऐसे बहुत से क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ चुके हैं. ओके, इवन इन गेट देयर इज वन क्वेश्चन, अभी रिसेंटली इन्होंने क्वेश्चन पूछा था गेट 2018 में, सिमिलर टू दैट, है ना. एकदम एकदम ऐसा ही नहीं था, बट हाँ लाइक इसी तरह कुछ कॉन्सेप्ट यहां से था. ओके, सो लेट्स सी दैट. तो ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन जहां पर आपका स्ट्रेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, एंड दिस इज योर वाई डायरेक्शन. दिस इज योर वाई डायरेक्शन. सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट okay, that you have to find out the relationship between the compressive stress which is acting in the y direction, and you have to find the relationship between this and this. Okay, so these two are in the y direction, so you have to find out the relation, and then you have to select which one of the correct answer. Okay, so to solve this question we have to use the equation of strain under triaxial loading. So the equation for strain under triaxial loading, we know that if you want to find out the value of epsilon y, it is 1 upon e sigma y minus mu sigma x plus sigma z, bracket close. If you want epsilon x, so this will be 1 upon e sigma x minus mu sigma y plus sigma z, यहाँ पर bracket close. And similarly if you want for epsilon z, it is 1 upon e sigma z minus mu x plus y. Correct. Now out of these three equation, let's see what equation we have to use in this question. See this one. So now first of all we will use this equation, epsilon y equation. So if you put epsilon y, so epsilon y is your epsilon that is given in this question, then 1 upon e, what is your sigma y? Okay, so sigma y is sigma. Okay, so sigma y that is given, that in this direction it is sigma. Okay, so put sigma y equals to sigma minus mu sigma x plus sigma z will be 0. See, why you will get sigma x and why z will be 0? Because see, we know this property that stress is always developed in the direction of applied load. Okay,
So whenever you are applying load in any direction, so in that direction stress will be developed. So in this case, the load is acting in which direction? The load is acting in y direction. So you will get stress in y direction. Okay, good. Now there will be, due to this load in y direction, there will be strain in x direction and strain in z direction, but the strain in x direction is restricted. So whenever the strain is restricted, okay, so whenever strain is restricted completely or partially, completely or partially, okay, so whenever the strain is restricted completely or partially, stress will be developed. Okay, so stress will be there, so that means we will get stress in the x direction, but in z direction the strain is not restricted, that is free, so there will be no stress in the z direction. So here you can write like this. So from here what expression you will get? 1 upon E, epsilon equals to 1 upon E, this will be sigma minus mu sigma x. Now you want the value of sigma x, correct? So this is your equation number 1. Now you want the value of sigma x. So how you will get the value of sigma x? See, epsilon x, this equals to 1 upon E sigma x minus mu y plus z, correct? So now from this equation, what is the strain in x direction? So the strain in x direction is restricted completely. So that means in x direction strain is 0, that is 1 upon E sigma x minus mu sigma y is sigma z is 0, so this will be the equation. So E will become 0. So from here you will get sigma x equals to mu sigma x equals to mu sigma. So using equation 1 and 2, okay, so put the value of sigma x in equation 1. So from here epsilon equals to 1 upon E, epsilon equals to 1 upon E sigma minus mu and then mu sigma. Okay, this will be the equation. So from here epsilon into E, this equals to sigma, if you take out, so 1 minus mu square, and finally you can write sigma equals to epsilon into E 1 minus mu square. So this will be your answer. Okay, so this will be answer, sigma equals to epsilon E 1 minus mu square. So that is given in option D. So option D is the correct answer. Okay, so I hope this question is clear to you. So now let's move to the next question. चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं. Okay, so let's see this question. This is also a very good question, है ना, बहुत ही अच्छा question है, and this is a common data question. So from this question we will solve 2 questions, है ना. So इस question से हम लोग 2 question देखेंगे इस data से. So let's see the first part. So what is given? A 12 millimeter thick steel rectangular plate of size 100 millimeter into 200 millimeter is subjected to biaxial stress, that is sigma x, that is equals to 150 megapascal, sigma y is 200 megapascal as shown below. The Young's modulus and the Poisson's ratio are 200 gigapascal and 0.3 respectively. So you have to find out the change in thickness, है ना, कितना change हो रहा है thickness में in micrometer. Micrometer में आपको find out करना है what is the change in the thickness. Thickness कहां पर होगी? थिकनेस होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट मींस परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, है ना, स्क्रीन के परपेंडिकुलर, स्क्रीन के अंदर की तरफ जाओगे तो आपको थिकनेस मिलेगी. ओके, सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला विच वी हैव जस्ट कवर्ड, है ना, उसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन भी किया जाएगा. सो अगर आप यहां पर देखो इस क्वेश्चन में, तो एक्स डायरेक्शन की मैं बात करूं तो एक एक्स डायरेक्शन का डायमेंशन क्या है? 100 मिलीमीटर. वाई डायरेक्शन का डायमेंशन क्या है? 200 मिलीमीटर. नाउ जेड डायरेक्शन का डायमेंशन क्या होगा? वो होगी थिकनेस. सो जेड डायरेक्शन का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी योर थिकनेस. सो बेसिकली सी, चलिए सो इसको कैलकुलेट करते हैं. सो आपसे पूछा गया है चेंज इन थिकनेस, सो यू हैव टू डिटरमाइन द चेंज इन थिकनेस. तो सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करना है कि जो आपकी थिकनेस है वो किस डायरेक्शन में है. चलिए यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया, है ना. सो ये हो गया आपका डायमेंशन यहां पर. सो ये जो डायमेंशन है वो 100 मिलीमीटर है. सो इस डायमेंशन की मैं बात करूं तो ये 100 मिलीमीटर है और ये वाला डायमेंशन आपका
what is given in this 200. Okay, so this dimension is 200 millimeter. Okay, so you have to determine the change in thickness. Now you can see this direction is x direction, this direction is your y direction. So where is the thickness? Thickness is in the z direction. Z direction. So that means you have to determine the strain in the z direction. You have to determine the strain in the z direction. So this will be 1 upon E sigma z minus mu sigma x plus sigma y. Correct? So this you have to determine, because this strain will be change in thickness upon original thickness. Okay, so the strain in z direction will be change in thickness upon original thickness. So now you know that in the x direction it is given 150 megapascal, in the y direction it is given as 200 megapascal. So these stresses are given in x direction, in y direction. But what about z direction? So in z direction it will be 0. So now put this value. So epsilon z will be 1 upon, now put the value of Young's modulus in megapascal. So 200 into 10 to the power 3 will be megapascal. Sigma z is 0 minus mu value 0.3 into 0.3 inside the bracket 150 plus 200. So calculate this. So you will get the strain. So if you calculate this, so 0.3 into 350, okay, this divided by 200 divided by this one. So from here you will get the strain in z direction. यहां से आपको मिल जाएगा strain in z direction, that is minus 5.25 into 10 to the power minus 4. This will be the strain in z direction, that is the change in thickness upon original thickness. So so this will be minus 5.25 into 10 to the power minus 4. So the change in thickness will be, see what is the original thickness. So original thickness is given as 12 millimeter, है ना. So 12 से multiply कर दीजिए. So minus 12 into 5.25 into 10 to the power minus 4. So multiply by 12. So this will be in millimeter. तो ये जो आंसर आएगा आपका, that is 6.3 minus 6.3 into 10 to the power minus 3 millimeter. And when you will convert this into meter, so this will be 6.3 into 10 to the power minus 6 meter, or you can write minus 6.3 micrometer. ये हो जाएगा आपका change in thickness. Okay, so I hope this question is clear to everyone, है ना. सो यहां पर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया चेंज इन थिकनेस, दैट इज 6.3 माइक्रोमीटर, माइनस साइन के साथ है. सो यस, यहां पर सिर्फ आपसे चेंज पूछा जा रहा है ना, एग्जैक्टली नहीं पूछा जा रहा साइन के साथ कि कम हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. सो जस्ट पुट द मैग्नीट्यूड, दैट इज 6.3 माइक्रोमीटर. करेक्ट. अगर सपोज करिए ऑप्शन में माइनस 6.3 होता, तब हम लोग माइनस 6.3 को पुट करते, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली फिर हमसे डायरेक्शन के साथ वो पूछ रहा होता. अब इसी क्वेश्चन का लेट्स डू द सेकेंड पार्ट. सो सेकेंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, द चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट. सो इस प्लेट में सरफेस एरिया में कितना चेंज हुआ, है ना. बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट. सो सेकेंड पार्ट में हमें चेंज इन सरफेस एरिया निकालना है. तो लेट्स सी दिस. तो अगर इनिशियली ये था डायमेंशंस, है ना, इनिशियली जो डायमेंशंस थे वो आपके डायमेंशंस कुछ ऐसे थे. ओके, so initially the dimensions were like this. Now this one was your 200 millimeter and this one was your 100 millimeter, है ना. ये 200 है, ये 100 है, ये है ना. So let's see the dimension. Yes, so this direction is x direction and this one is your y direction. So what you have to do, find out the strain in x direction and y direction. पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि x डायमेंशन कितना बदल रहा है, y डायमेंशन कितना चेंज आ रहा है. ठीक है, तो x डायमेंशन का जब आप निकालोगे x डायरेक्शन का, सो 1 अपॉन e सिग्मा x माइनस म्यू सिग्मा y प्लस सिग्मा z ब्रैकेट क्लोज. ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन x. सो एप्सिलॉन x जब आप निकालोगे, सो एप्सिलॉन x आ जाएगा 1 अपॉन 200 इंटू 10 टू द पावर 3. सिग्मा एक्स कितना है 150 मेगापास्कल, माइनस म्यू वाई कितना है 200. अच्छा, म्यू की वैल्यू पुट करिए 0.3 इंटू 200. देखिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो रहने दीजिए. तो यहां से अगर आप एप्सिलॉन एक्स निकालोगे,
So 150 minus 0.3 into 200 divided by 200 E3, so this will be 4.5. ये आ जाएगा पॉजिटिव में 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अच्छा, अब देखिए यहां पर x डायरेक्शन में कितना चेंज आया, तो डेल्टा x डिवाइडेड बाई द ओरिजिनल डायमेंशन इन x दैट इज 100, है ना। सो कितना चेंज आया x डायरेक्शन में, तो इसमें 100 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट 0.045 मिलीमीटर का चेंज हुआ, और ये इंक्रीज हुआ क्योंकि पॉजिटिव में आया है, तो ये इंक्रीज हुआ, तो x डायमेंशन आपका इतना बढ़ गया, x डायमेंशन आपका इतना इंक्रीज कर गया, करेक्ट। सो फाइनल x डायमेंशन कितना हो गया, सो फाइनल x डायमेंशन हो गया 100.045 मिलीमीटर। तो अब जो नया शेप बनेगा उसमें जो फाइनल डायमेंशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा x डायरेक्शन में। नाउ कैलकुलेट इन द y डायरेक्शन। ओके, y डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं। सो इन द y डायरेक्शन, एप्सिलॉन y दैट इज 1 अपॉन e सिग्मा y माइनस म्यू सिग्मा x प्लस सिग्मा z ब्रैकेट क्लोज। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन 200 इंटू 10 टू द पावर 3 सिग्मा y इज योर 200 माइनस म्यू 150। ओके, म्यू की वैल्यू पुट करते हैं 0.3 इंटू 150 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। सो 200 माइनस 0.3 इंटू 150 डिवाइडेड बाई दिस 200 एंड E3, सो दिस विल बी 7 पॉइंट, ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, कितना आ रहा है 7.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, एंड दिस इज द चेंज इन डायमेंशन ऑफ इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डायमेंशन। तो कितना डायमेंशन चेंज हुआ वाई डायरेक्शन में, सो वाई डायरेक्शन में अगर आप डायमेंशन चेंज की बात करोगे सो इसमें 200 मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये आ जाएगा 0.155 millimeter. Now what is the original y dimension now? So the original dimension will be 200, now final dimension 200.155 millimeter. Okay, so that means there is a change in x dimension, there is a change in y dimension. So the initially this was the case. Okay, so initially this was your shape. Now what has happened, so this shape has changed. Okay, so y dimension has also increased, x dimension has also increased like this one. So what is the new surface area? So new surface area will be x1 y1. What is the initial area? That is a, that is x into y. So what is the change? So the change will be change in area, so that change in area will be a1 minus a. Okay, so this is asked in the question. So what is a1? So a1, this is 100.045 into 200.155. This is the new cross section area. Now initially the cross section area was 200 into 100. Just calculate this and you will get the answer. कितना आ जाएगा ये देखिए जरा. So 100.045 into 200.155 minus 2001020 more. So you will get, if you solve this, you will get 24.5 millimeter square. This is the change in cross sectional area of this plate. This is the change in cross sectional area of this plate. So that is given in which option? So let's check that. 24.5. So that is given in option number C. So option C will be the correct answer. Is it clear? So I hope this question is clear to everyone. है ना. सो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था. तो पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा गया कि थिकनेस में कितना चेंज होगा, तो थिकनेस में चेंज निकालने के लिए आपको सिर्फ जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन फाइंड आउट करना था. सो फ्रॉम देयर यू विल गेट कि भाई थिकनेस में इतना चेंज आया. और सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना चेंज आएगा. तो पहले तो आप ये निकालो कि जो नई क्रॉस सेक्शन एरिया आएगी वो कितनी होगी. सो टू गेट दैट आपको डायमेंशन चाहिए. तो डायमेंशन के लिए स्ट्रेन फाइंड आउट करो एक्स डायमेंशन में, वाई डायमेंशन में, देन कैलकुलेट द न्यू एरिया. So this is the new area x1 y1, this is x1, this is y1, and x into y. Okay, so then you will get this area. So I hope this question is clear to everyone. So now let's move to the next question. Let's move towards the next question. Okay, so that is the question number 9. So देखिए next question देखते हैं, fourth question for today's lecture. So yes, this is again from the strain analysis, stress and strain analysis. So what is given in this question?
चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए आराम से, समझिए व्हाट इज द गिवन डेटा एंड हाउ टू प्रोसीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। सो देखिए यहां पर क्या गिवन है, एट ए पॉइंट in a body epsilon 1 equals to 0.0004 and epsilon 2 is minus 0.00012 and E equals to 2 into 10 to the power 5 megapascal and Poisson's ratio mu equals to 0.3, the smallest normal stress and the largest shearing stresses are. So first of all let's see what they are asking, है ना। तो सबसे पहले तो देखो क्या पूछ रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं आपसे स्मॉलेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस। तो पहले तो ये समझो, जल्दी जल्दी हम लोग क्या होता है ना, क्योंकि हम लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, तो कभी कभार होता है नॉर्मल स्ट्रेस, जनरली हम लोग को लगता है स्मॉलेस्ट क्यों पूछेगा, मैक्सिमम। तो स्मॉलेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब हो गया आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो बेसिकली आपसे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं फटाफट से, और जो सबसे पहले आता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, हमको लगता है वही पूछा जा रहा है। तो रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग स्मॉलेस्ट नॉट द लार्जेस्ट। सो स्मॉलेस्ट मींस दैट इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। आपसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा चीज आपसे क्या पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट शियरिंग स्ट्रेस, और यहां पर पॉइंट मेंशन है। तो पॉइंट मेंशन है मतलब हम ट्राई एक्सेल की बातें कर रहे हैं, और लार्जेस्ट शियरिंग स्ट्रेस की जब आप बात करोगे इसका मतलब आपको अब्सोल्यूट टाउ मैक्स निकालना है, अब्सोल्यूट टाउ मैक्स। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अब्सोल्यूट एंड इन प्लेन ना। सो अब्सोल्यूट टाउ मैक्स जो होता है आपका, अब्सोल्यूट टाउ मैक्स दैट इज द मैक्सिमम ऑफ इनसाइड दिस ब्रैकेट मॉड पुट कर देते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉमा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, मॉड यहां पर पुट करके कॉमा लगा देते हैं, एंड देन सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। सो इसमें जो मैक्सिमम होगा वो होगा आपका एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, और वो पूछा गया इस क्वेश्चन में, है ना। तो ये हमारी जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है बाई एक्सेल, क्योंकि एप्सिलॉन 1 गिवन है, एप्सिलॉन 2 गिवन है, इसको हम बाई एक्सेल मान के चल रहे हैं। तो बाई एक्सेल के केस में सिग्मा 3 हमारा 0 हम लोग मान लेंगे। ओके, सो विल कैलकुलेट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, देन विल एज्यूम सिग्मा 3 इक्वल्स टू 0। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो एप्सिलॉन 1 इज गिवन हाउ मच, कितना गिवन है, 0.0004 and epsilon 2 is given as minus 0.0012. Okay, minus, and E is given as 2 into 10 to the power 5 megapascal. So Young's modulus is given, and Poisson's ratio is 0.3. Okay, so Poisson's ratio is 0.3. Now calculate this value. So smallest normal stress. So from here what we have to do, कौन सी रिलेशन यूज करनी है हमें, है ना। सो देर इज वन रिलेशन वेयर वी कैन गेट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फ्रॉम प्रिंसिपल स्ट्रेन। सो व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन, दिस वन, सिग्मा 1 इज गिवन बाय ई अपॉन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर, ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू एप्सिलॉन 2। ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप between principal stress and principal strain. Okay, there is one more relation, है ना। so एक रिलेशन ये भी है, that is epsilon 1 equals to 1 upon e sigma 1 minus mu sigma 2। अगर आपको, अगर बाई एक्सेल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए अगर आपको एप्सिलॉन 1 चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्राई एक्सेल में सिग्मा 3 तो 0 हो जाएगा। सो अगर आपको एप्सिलॉन 1 निकालना होता और ये गिवन होता तब ये वाली इक्वेशन यूज करते, बट इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा रहा है, ये दिया हुआ है, ये दोनों वैल्यूज गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। सो वी विल यूज दिस रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन हम लोग यूज करेंगे यहां पर। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी विल गेट सिग्मा 1, है ना। तो देखिए सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, अब हमसे तो पूछा सिग्मा 2 है ना, बट हम 1 क्यों निकाल रहे हैं, टाउ मैक्स भी तो निकालना है, टाउ मैक्स भी तो निकालना है ना। सो यूज दिस रिलेशन, सिग्मा 1 विल बी ई वैल्यू दैट इज 2 into 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.3 का स्क्वायर कर देते हैं, यहां से ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, देन एप्सिलॉन 1 दैट इज 0.0004 प्लस म्यू दैट इज 0.3 इंटू माइनस 0.0012। ओके, ये हो जाएगा आपका रिलेशन। तो चलिए यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि सिग्मा 1 कितना आ रहा है। सो दिस विल बी 0.0004 माइनस
0.3 इंटू 0.00012, ओके ये आ गया. दिस divided this into 2e5 divided by 1 minus 0.3 square. So from this you will get answer in megapascal because ये जो वैल्यू आपने पुट की मेगापास्कल में पुट की है. So from here you will get sigma 1 equals to 80 megapascal, है ना. 80 मेगापास्कल आ जाएगा आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस. मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा आपका 80 मेगापास्कल. करेक्ट, very good. So you have got major principal stress as 80 megapascal. Good. Now calculate sigma 2 value. Sigma 2 value calculate करिए. तो sigma 2 value calculate करोगे, so that will be 1 upon, okay sorry, this will be E upon 1 minus mu square, 1 minus mu square epsilon 2 plus mu epsilon 1. ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सिग्मा 2. यहां से आप सिग्मा 2 निकाल लोगे. सो सिग्मा 2 विल बी E इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 माइनस 0.3 स्क्वायर, 1 माइनस 0.3 स्क्वायर एप्सिलॉन 2. देखिए एप्सिलॉन 2 कितना गिवन है, माइनस 0. सी पुट दिस वैल्यू माइनस 0.00012 प्लस म्यू. म्यू इज 0.3 इंटू 0.0004. सो इसको आप सॉल्व करोगे ना, देखो ये जीरो आ जाना चाहिए. यहां पर आप करोगे ना माइनस 0.0012 प्लस 0.3 इंटू 0.0004. सो दिस हैज बिकम जीरो. तो ये जो इनसाइड द ब्रैकेट है ये जीरो हो गया. तो ये जीरो हो गया तो सिग्मा 2 आपका क्या हो जाएगा, 0 मेगा पास्कल. भाई जीरो हो जाएगा. सो सी किस किस ऑप्शन में जीरो है, तो यहां पर जीरो है, यहां पर जीरो है. सो इन दीज टू ऑप्शंस इट इज गिवन एज जीरो. नाउ absolute tau max कितना होगा. So you have got sigma 1, see you have got sigma 1 that is the major principal stress that is 80 megapascal, sigma 2 that is the minor principal stress ये भी कितना आ गया 0 megapascal, और ट्राइएक्सियल का केस अगर आप लोगे तो sigma 3 भी 0 megapascal हो जाएगा. So what is absolute tau max, आपको क्या निकालना है, absolute tau max that is the maximum of sigma 1 माइनस सिग्मा 2 और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1. तो यहां से आपका आ जाएगा 80 minus 0 divided by 2, so that will be 40 megapascal. Okay, so that is given in option C. So यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी will be the correct answer. क्लियर है ना. So I hope this question is clear to everyone. Okay, so till now from this relation there is no question in gate. Yes, this is expected, है ना, important relation, this is very important relation. Okay, so from this relation you can calculate the principal stresses if the principal strains are given, if the principal strains are given. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, so yeah, I will try to pick such questions so that the whole concept and the whole formulas there will be revision of all that, है ना. So इस तरीके से क्वेश्चन पिक करेंगे मूविंग फॉरवर्ड. सो लेट्स गो टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. सो लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन. चलिए देखते हैं. और ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है. दिस इज योर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन. Okay, so multiple select question means more than one options can be correct. So in this question more than one options can be correct. So what is given, एक भाई ओवरहैंगिंग बीम है, ओवरहैंगिंग बीम है एंड देयर आर नंबर ऑफ लोड्स, बहुत से लोड इसके ऊपर लग रहे हैं, है ना. देखो एक तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, एक लोड ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया गया है, फिर एक इंक्लाइंड लोड लगा हुआ है, तो बहुत ढेर सारे लोड लगे हुए हैं इसके ऊपर. अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सपोर्ट रिएक्शन एट ए इज 3 किलो न्यूटन. सो यहां पर मुझे एक मिनट इसका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, इसको यहां पर लिखना चाहिए था वर्टिकल सपोर्ट. Okay, vertical support reaction at A is 3 kilonewton and the maximum bending moment in the beam is 6 kilonewton meter, maximum bending moment in the beam is 4 kilonewton meter and there is no point of contraflexure in the beam. Okay, so ये सारी चीजें हमको चेक करनी है कि which of the following statement is correct. So क्या करना होगा इसको करने के लिए, तो देखिए स्मार्ट वे से सॉल्व करेंगे, है ना, स्मार्ट वे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा. तो इसमें देखना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको बीम में बताने के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लक्चर डिसाइड करने के लिए भी आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा. सो विदाउट ड्राइंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यू कैन नॉट टेल व्हाट्स द आंसर. और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आपको रिएक्शन निकालना पड़ेगा. ओके, सो यस, तो पहला पार्ट तो वही हो जाएगा आपका जहां पर रिएक्शन पूछ रहा है. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, है ना. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. थोड़ा सा
बीम की साइज को हम लोग बड़ा रखेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। सो 2 2 2 एंड लास्ट 1। सो फर्स्ट पार्ट 2 मीटर का है, देन सेकंड पार्ट फिर 2 मीटर का है, थर्ड पार्ट 2 मीटर का है और लास्ट पार्ट आपका 1 मीटर का है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के जो 2 मीटर है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है। यहां पर क्या लोड एक्ट कर रहा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ओके। और आपका सपोर्ट कहां पर है? यहां पर आपका सपोर्ट है। एट दिस पार्ट देयर इज द सपोर्ट एट दिस पार्ट, ठीक है, रोलर सपोर्ट यहां पर लगा हुआ है। What else is given? अच्छा, जब आप इस ब्रैकेट के लोड को यहां पर शिफ्ट करोगे, देखिए शिफ्टिंग कैसे करनी होती है, तो जहां पर आपको शिफ्ट करना होता है ना, वहां पर इक्वल एंड अपोजिट लोड लगा दो, वहां पर इक्वल एंड अपोजिट लोड लगा दो, सेम अमाउंट का 4 किलो न्यूटन का, यहां पर 4 किलो न्यूटन का नीचे की तरफ और यहां पर 4 किलो न्यूटन का ऊपर की तरफ। तो ये जो नीचे वाला है ये तो एज इट इज यहां पर आ जाएगा, कितना? 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन। और ये लोड और ये लोड, ये दोनों मिलके एक कपल क्रिएट कर देंगे, ये वाला लोड और ये वाला लोड मिलके एक कपल क्रिएट कर देंगे इन दिस डायरेक्शन, है ना। कितना होगा कपल का मैग्नीट्यूड? 4 इंटू इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 4 इंटू 0.5, सो दैट मींस 2 किलो न्यूटन मीटर का एक कपल यहां पर आ जाएगा। 2 किलो न्यूटन मीटर का यहां पर आपका एक कपल जनरेट हो गया, करेक्ट। नाउ ये जो फोर्स है इसको यहां पर आप रिजॉल्व कर लो, इसको रिजॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 4 cos 30, 4 cos 30, और यू कैन से दिस इज इक्वल्स टू 2 रूट 3, है ना, cos 30 दैट इज रूट 3 बाई 2। सो फाइनली ये 2 रूट 3 किलो न्यूटन हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 4 sin 30, सो ये हो जाएगा आपका 2 किलो न्यूटन, है ना। तो इसको भी यहां पर लगा दीजिए, तो यहां पर आप लोड लगा दो, कितना? 2 किलो न्यूटन, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा 2 रूट 3 किलो न्यूटन। चलिए, और डी पॉइंट पर आप लगा दीजिए सपोर्ट, डी पॉइंट पर लगा दीजिए हिंज सपोर्ट। नाउ डेजिग्नेट ऑल द पॉइंट, सारे पॉइंट का नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई, ओके। सो दिस इज पॉइंट ए, बी, सी, डी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज योर ई पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स हो गए। नाउ दिस लेंथ इज 2 मीटर, ये जो लेंथ है ये आपकी 2 मीटर की लेंथ है। अगेन ये जो लेंथ है ये भी आपकी 2 मीटर है। हेयर ऑल्सो दिस लेंथ इज योर 2 मीटर एंड द लास्ट वन इज ऑफ 1 मीटर। ये कितनी है? 1 मीटर की है। चलिए, तो यहां पर मैं नीचे की तरफ इसमें ड्रॉ करूंगा एसएफडी एंड बीएमडी, तो यहां पर स्पेस छोड़ देते हैं और जो कैलकुलेशंस होगी वो साइड में करेंगे, ठीक है। चलिए, यहां पर लिख दिया और इसको यहां पर ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर हम लोग एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करने वाले हैं। सो हियर विल ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो कैलकुलेशन कहीं और करते हैं, ओके। सो चलिए, कैलकुलेशंस के लिए साइड में कर लेते हैं। तो यहां पर आपके दो रिएक्शंस आएंगे, हियर यू विल गेट द रिएक्शंस, है ना। एट दिस सपोर्ट ए पे आपको रिएक्शन आएगा वर्टिकल रिएक्शन, तो आर ए वी इसको लिख लीजिए, और यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ही आएगा, है ना, क्योंकि ये जो सपोर्ट है दिस इज योर रोलर सपोर्ट, ये रोलर सपोर्ट है। तो अगर आपका यहां पर वर्टिकल नहीं भी लिखा होता, सिंपली सपोर्ट रिएक्शन एट ए जंक्शन होता, तब भी आपका आंसर करेक्ट होता। क्यों? क्योंकि ए इज द रोलर सपोर्ट, सो रोलर सपोर्ट विल नॉट प्रोवाइड द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, है ना। रोलर सपोर्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? सो दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द डी, है ना, वो डी प्रोवाइड करेगा। तो वॉट एवर द रिएक्शन, सो हेयर जो आर, यहां पर कुछ भी हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा। अगर आप ये लिखते हो आर ए एच, तो बिकॉज ऑफ दिस रोलर सपोर्ट आर ए एच विल बी जीरो, तो आर ए वी को आप सिंपली लिख सकते हो आर ए, है ना, आर ए वी को लिख सकते हो। और यहां पर क्या हो जाएगा? दिस विल बी आर डी वी, दैट मींस सपोर्ट रिएक्शन एट डी इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड देयर विल बी ए सपोर्ट रिएक्शन एट डी, ओके, इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज आर डी एच, और वो इसके बराबर आएगा क्योंकि एक ही लोड है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज वन लोड, तो आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हो कि दैट इज आर डी एच इक्वल्स टू 2 रूट 3 किलो न्यूटन, ओके। बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जितनी भी चीजें हमसे यहां पर पूछी गई है उसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, है ना। सो चलिए देखते हैं फिर। तो यहां पर जब आप लिखोगे दैट इज आर ए प्लस आर डी वी, दिस इक्वल्स टू, ऊपर देखिए कितने लोड लग रहे हैं। सो दिस लोड इज 1 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस लोड इज 1 किलो न्यूटन पर मीटर। सो जो नेट लोड होगा यहां पर लगेगा, कितने का लगेगा? 2 किलो न्यूटन नेट लोड। सो दिस इक्वल्स टू 2, दिस वन प्लस 4 यहां से लग रहा है और ये 2 यहां से लग रहा है, ओके। सो आई कैन राइट दैट इज आर ए प्लस आर डी वी, दिस इक्वल्स टू 8 किलो न्यूटन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। अब देखिए
ये तो आपने किया समेशन ऑफ पहला लोड लाने के लिए समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, और इसको निकालने के लिए आपने क्या किया, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। अब कर लेते हैं समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0, सो यू विल गेट द दिस वन। आपको डी पॉइंट पे जो रिएक्शन है वो पता चल जाएगा, है ना। सो यहां से अगर आप ए पॉइंट पर मोमेंट 0 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2, ये जो लोड लग रहा है दिस लोड इज 2, है ना। सो 2 इंटू इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर का। सो 2 इंटू 1 किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। अब ये जो 2 लग रहा है दैट इज द कंसंट्रेटेड मोमेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो -2 आ जाएगा। नाउ ड्यू टू दिस लोड 4 किलो न्यूटन लोड की वजह से क्लॉकवाइज कपल क्रिएट होगा, सो प्लस 4 इंटू 4 इंटू ए पॉइंट से 4 का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। नाउ व्हाट अबाउट दिस लोड आर डीवी, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो माइनस आर डीवी इंटू कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, 6 मीटर। ओके अब ये जो 2 किलो न्यूटन का लोड है ये भी क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा, तो प्लस 2 इंटू डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर, दिस इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको आर डीवी की वैल्यू पता चल जाएगी। सॉल्व दिस, सो यू विल गेट, सो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां पर आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 14 और डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो आर डीवी आ जाएगा आपका 5 किलो न्यूटन, है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये हो गया आपका 5 किलो न्यूटन। तो अगर ये 5 हो गया तो 8 माइनस 5 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 किलो न्यूटन, करेक्ट। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। सो यहां पर ये आ जाएगा आर ए दैट इज आर ए वी, दिस इक्वल्स टू 3 किलो न्यूटन, करेक्ट। नाउ वी कैन ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए मैं डायरेक्टली ड्रॉ करूंगा, सो आई विल टेल यू द मेथड आल्सो, किस तरीके से मैं डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहा हूं, है ना। सो आई विल कैलकुलेट द शियर फोर्स एट एवरी पॉइंट। सो ए पॉइंट पर देखिए कितना है, 3 किलो न्यूटन। सो 3 किलो न्यूटन ऊपर चले जाइए, ए पॉइंट पर 3 किलो न्यूटन है तो 3 किलो न्यूटन ऊपर चले जाइए। नाउ सी द बी पॉइंट, बी पॉइंट का देखो बी पॉइंट पर अपना हाथ रखो यहां पर, है ना। पुट योर हैंड एट जंक्शन बी एंड कैलकुलेट द टोटल लोड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो कितना लोड लग रहा है, 3 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ, 2 किलो न्यूटन नीचे की तरफ, कितना बचा, 1 किलो न्यूटन। तो 3 किलो न्यूटन से आपको 1 किलो न्यूटन पर आना है। अब देखिए ऊपर लोडिंग कैसी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब शियर फोर्स डायग्राम इससे एक ऑर्डर ज्यादा बनेगा। एक ऑर्डर ज्यादा का मतलब ट्राइंगल के शेप में आएगा तो लीनियरली जाएगा। ओके सो यहां से यहां तक जब आप ज्वाइन करोगे तो लीनियर ज्वाइन होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1, इसको यहां ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज 1 किलो न्यूटन। अब यहां पर 1 हो गया। नाउ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं शियर फोर्स डायग्राम, नाउ ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन टिल द नेक्स्ट लोड। तो नेक्स्ट लोड कहां पर एक्ट कर रहा है उस वहां तक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ये कितना हो गया, 1 किलो न्यूटन। अब यहां पर 4 किलो न्यूटन नीचे जा रहा है, तो 1 माइनस 4 विल बी -3। तो यहां पर मैं आ गया वापस -3 किलो न्यूटन। देन अगेन ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन टिल द नेक्स्ट लोड। अब यहां पर -3 किलो न्यूटन से 5 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो -3 + 5 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 किलो न्यूटन, दैट विल बी 2 किलो न्यूटन। 2 किलो न्यूटन हो गया। देन ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन टिल द नेक्स्ट लोड और यहां पर आके ये 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 किलो न्यूटन। सो दिस इज पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, करेक्ट। साइन कन्वेंशन कोई अपोजिट लेके कर सकता है तो उसके लिए उल्टा डायरेक्शन में सब कुछ आ जाएगा, जहां जहां मैंने प्लस लिया उसके लिए वो माइनस हो जाएगा। सो दैट डिपेंड्स अपॉन योर साइन कन्वेंशन, ओके। सो नाउ ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फटाफट से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज ऑल्सो सेम वे, है ना। हर एक पॉइंट पर फाइंड आउट कर लेते हैं। ए पॉइंट पे तो 0 होता है, चलिए बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करिए। सो बी पॉइंट पे जब आप बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करोगे सो कितना हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 2, ये जो रिएक्शन है दिस इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, है ना। कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2, सो दैट विल बी 4 किलो न्यूटन मीटर, है ना। 2 इंटू 1 क्यों किया, क्योंकि 2 लोड है और कितने डिस्टेंस पर है ये 1 मीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम पॉइंट बी, ओके। सो यहां पर कितना हो जाएगा, 4। अच्छा तो यहां से आपको पता है कि यहां पर जो आपको पहुंचना है ये कितना है, 4 किलो न्यूटन मीटर तक आपको पहुंचना है। बट किस तरीके से आना है, सी द शियर फोर्स डायग्राम। वी नो दैट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज 1 ऑर्डर मोर देन द शियर फोर्स डायग्राम, ओके। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक ऑर्डर ज्यादा होता है। तो अगर बेंडिंग मोमेंट सॉरी शियर फोर्स डायग्राम जो है अगर आपका कैसा है, ट्राइंगल, तो ये कैसा बनेगा, पैराबोला। अब यहां से यहां तक इसकी इंटेंसिटी घट रही है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग कर्व का पैराबोला बनाना है, तो ये बन गया आपका डिक्रीजिंग कर्व का पैराबोला,
ओके, सो दिस इज द डिक्रीजिंग कर्व पैराबोला विच इज गोइंग टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ मूव करेगा दैट इज डिक्रीजिंग कर्व, जो वर्टिकल लाइन की तरफ मूव करेगा वो इंक्रीजिंग कर्व। तो ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और कैसे डिसाइड करना है कि इंक्रीजिंग बनाना है या डिक्रीजिंग, जस्ट सी द शियर फोर्स। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर शियर फोर्स की इंटेंसिटी घट रही है। सो शियर फोर्स की इंटेंसिटी अगर घट रही है तो इसका स्लोप भी घटेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन F इक्वल्स टू डी एम बाई डी एक्स। सो अगर शियर फोर्स की इंटेंसिटी घट रही है तो dm by dx दैट इज द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो भी डिक्रीज करेगा। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर यू विल गेट डिक्रीजिंग कर्व पैराबोला। सो नाउ एट सी पॉइंट, तो सी पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। सो सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करोगे, सो 3 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, सो 3 इंटू ये डिस्टेंस 4 एंड 2 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3। ओके, सो क्योंकि सी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मोमेंट है तो सी पॉइंट पर हम लोग दो बार फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, सो दिस विल बी 6 किलो न्यूटन मीटर। ये कितना हो जाएगा 6 किलो न्यूटन मीटर। तो यहां से यहां तक आपको आना है कितना 6 किलो न्यूटन मीटर। बट कैसे आओगे, देखो ये रेक्टेंगल है तो यहां पर ट्राइंगल आना चाहिए, मतलब लीनियर जाएगा। अब यहां से यहां तक लीनियर जाओगे, ठीक है। सो दिस इज लीनियर। कितना हो गया ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज 6 किलो न्यूटन मीटर। नाउ एट द सेम पॉइंट सी पॉइंट पर पहले 6 किलो न्यूटन मीटर है, फिर 2 किलो न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। सो दिस विल बी 4 किलो न्यूटन मीटर। अगर किसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मोमेंट है तो वहां पर दो बार फाइंड आउट करना होगा, एक बार उसको बिना कंसीडर करके, दोबारा उसको कंसीडर करके। ओके, सो नाउ एट द सेम पॉइंट दिस वैल्यू विल डिक्रीज। ये नीचे आ जाएगा, कितना नीचे आ जाएगा, इसके बराबर वापस। ओके, यहां पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये वैल्यू। सो दिस वैल्यू विल बी 4 किलो न्यूटन मीटर, 4 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, डी पॉइंट पर अगर आपको निकालना है तो डी पॉइंट पर इधर से भी निकाल सकते हो। देखो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का मतलब ये -2। ओके, सो ये जो वैल्यू होगी ये -2 होगी, -2 किलो न्यूटन मीटर, बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन है ना। जो 2 की वजह से जो कपल होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और ये डायरेक्शन हमारे लिए निगेटिव है एज पर आवर साइन कन्वेंशन, हॉकिंग क्रिएट करता है ये। ओके, अब आपको इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। अगर आप चाहो तो डी पॉइंट पर निकाल सकते हो, आपको -2 आएगा। अगर आपको डी पॉइंट पर निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप निकालोगे भी तो दिखा देता हूं मैं डी पॉइंट पर। सो दिस विल बी 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 1 5, सो 2 इंटू 5 एंड देन -2 एंड देन this is this -2, this is 3 into this one, -2, then 4 into 2। okay, so -4 into 2, so just calculate this, you will get, है ना। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, ऊपर वाला हो जाएगा 2 2 4 2 6। ओके, सो दिस विल बिकम ये आ जाएगा आपका 12, ओ सॉरी 18। ओके, 18 में 12 लिख रहा हूं, सॉरी 18 -10 -2 एंड -12, सो 12 एंड दिस 22 24। सो इफ यू कैलकुलेट दिस, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट, 1 2 3 4 1 5, यहां से 5 आ रहा है एंड -2। ओके, सो जस्ट कैलकुलेट दिस एंड यू विल सी, यू विल गेट दिस वैल्यू। कितना आ रहा है ये 18, है ना, 18 -10 एंड देन -2 एंड देन -12, सो यू विल गेट -6 आ रहा है। ओके, सो लेट मी चेक वंस अगेन। ओके, सो एक मिनट चेक करते हैं यहां पर विच लोड वी आर मिसिंग हेयर। ओके ओके ओके, जस्ट 1 मिनट। So due to this load in this direction, due to this load in this direction and due to this load in this direction, और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। सो यहां से जब आप देखोगे 1 2 3 4 1 5 एंड 4 इंटू 2, ओके 4 इंटू 2 का यहां पर आ जाएगा। ओके, एंड ड्यू टू दिस लोड ऑल्सो, ये भी एक लोड है ना, सो इसकी वजह से जो आएगा उसको भी आपको कैलकुलेट करना होगा। सो ड्यू टू दिस लोड आपका पॉजिटिव आ जाएगा +2 इंटू 1, है ना। सो इसकी वजह से भी यहां पर आ जाएगा +2 इंटू 1। ओके, सो ड्यू टू ऑल दीज लोड्स, सो डी पॉइंट पर जब आप कैलकुलेट करोगे, सो जस्ट 1 मिनट, है ना, डी पॉइंट पर आप कैलकुलेट करो 2 3 4 5 6 6 3 18। ओके, सो लेट मी चेक अगेन। सो दिस विल बी 18 देन माइनस this load is 2 2 2 4 1 5। okay, so this will be -10। okay, so this direction, इसकी वजह से ये डायरेक्शन आएगा, इसकी वजह से आपका ये डायरेक्शन आ जाएगा, then again this direction and this direction। okay, so 4 into 2। okay, so yes, finally if you calculate from this side, ठीक है, आप this side से calculate करें, इसको रिमूव करता हूं मैं
है ना, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट कर लेते हैं ना। इसको आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी आपकी, दैट इज 2 into 1, है ना। 2 into 1, यहां से -2 आ रहा है, तो मेनली आपको क्या कर देना है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर देना है, इन दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है लाइक दिस। ओके, सो यू कैन ज्वाइन दीज टू लाइक दिस वन, और लीनियरली ज्वाइन करना है आपको। कैसे ज्वाइन करना है, लीनियरली ज्वाइन करना है। ओके, सो लीनियरली यू कैन ज्वाइन, एंड दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर निगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक आपका पॉजिटिव साइड में बन गया, दूसरा आपका निगेटिव साइड में बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, सो फ्रॉम हेयर यू कैन कंक्लूड दीज थिंग्स, आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो। सो देखिए, वर्टिकल रिएक्शन एट ए इज 3 किलो न्यूटन, ए पर वर्टिकल रिएक्शन कितना है, 3 किलो न्यूटन का है। सो वेरी गुड, हाँ बिल्कुल है यहां पर 3 किलो न्यूटन का, यू कैन से दैट। सो द फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, है ना। सो द फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, that is the vertical support reaction at A is 3 किलो न्यूटन, and at this part, और देखते हैं जरा सेकंड पार्ट क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम इज 6 किलो न्यूटन मीटर। सो लेट्स चेक दिस, क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 6 किलो न्यूटन है, यस, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 6 किलो न्यूटन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। ये भी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आपको डी पर निकालना भी है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, यहां पर आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट, आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी, है ना, यू विल गेट द सेम आंसर, इससे भी आपका सेम आ जाएगा, आप एक बार इसको चेक कर लेना, यू विल गेट द सेम आंसर फ्रॉम दैट ऑल्सो। ओके, सो चलिए, सो कहां पर थे हम लोग, यस, सो सेकेंड पार्ट, लेट्स चेक द सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द सेकेंड ऑप्शन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 6 किलो न्यूटन, यस दैट इज करेक्ट। सो 4 किलो न्यूटन नहीं होगा, 4 किलो न्यूटन इज नॉट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, 4 किलो न्यूटन यहां पर है। Now, what else is given? There is no point of contraflexure. There is no point of contraflexure. So that means ये क्या, यहां पर कोई point of contraflexure नहीं होगा, तो आपको निकालोगे तो आपको मिलेगा। Okay, so just calculate this. अगर आप यहां पर निकालोगे, so yes, here we are getting the point of contraflexure. Contraflexure means, contra means opposite, flexure means bending. Okay, so you can write this one, that is the contraflexure. ओके, सो कॉन्ट्रा मीन्स हो गया आपका अपोजिट, एंड फ्लेक्सर में आ जाएगा आपका बेंडिंग। ओके, सो अपोजिट बेंडिंग, दैट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या कहीं पर चेंज हो रहा है, यस। सो यहां से पॉजिटिव मीन्स सैगिंग, नेगेटिव मीन्स हॉगिंग, तो सैगिंग से हॉगिंग में चेंज हो रहा है। सो हेयर देयर इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन एंड इट इज गिवन देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, सो दैट इज रॉन्ग। सो दैट मीन्स व्हाट आर द ऑप्शंस करेक्ट, सो ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स। Okay, so in this way also they can ask the MSQ question. Okay, okay then, so that's it for today's session, and we'll meet again with the new set of questions. Okay, so here you can follow me at unacademy.com/@90alok90, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड आपको यहाँ से मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, एंड देन यू कैन ज्वाइन द स्पेशल क्लास, आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर आप देख सकते हो कि बहुत ढेर सारे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशंस किए हुए हैं, और आपको बहुत सी क्वालिटी क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो उसके वहां से एंटर करके यू कैन डाउनलोड द PDF सो दैट यू कैन गेट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और इफ यू वांट आप उसको देख भी सकते हो, है ना, सो दैट टू गेट द बेटर क्लियरिटी। Okay, yes, don't forget to like this video if you think that the questions are helpful to you, and if don't forget to subscribe this channel, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, so go and subscribe to this channel and hit this bell icon to get the instant notification. You can post your doubt in the comment box, आप कमेंट कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट है, yes, I will be there, I will be active, and yes, I will resolve your doubt in the comment box. And if you are going for the plus subscription or iconic subscription, you can use this code to get the 10% discount, or if you want to unlock your special classes, then also you can use this code. Okay, in the description box of this video you can find the telegram link, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, and द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जितने भी लेक्चर्स जो मैंने पहले कवर कर चुके हैं, इफ यू वांट टू कवर एनी टॉपिक, कोई भी डाउट है, सो यू कैन फाइंड द प्लेलिस्ट ऑफ ऑल द लेक्चर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, बाय बाय, एंड करते हैं यहाँ पर सेशन।